Good morning, dear students. Today we'll be studying the second part of the chapter 2, that is microorganisms, friends and foe. So let's see the next part of the chapter. Yesterday we have studied about different types of microorganisms and what are their functions, disease caused by them, and how are they useful to us in daily life as well as their commercial use also. So today we will see the medicinal use of microorganisms. That what are the medicinal use of microorganisms? Microorganisms are used in the production of antibiotic tablets, capsules और injections such as penicillin. जो microorganisms होते हैं वो एंटीबायोटिक टैबलेट्स बनाने में, कैप्सूल बनाने में, इंजेक्शन बनाने में यूज़ होते हैं. Such medicines are called antibiotics. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. और आपने देखा होगा आज के टाइम पे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में बनती हैं. और here are some of the antibiotics like streptomycin, tetracycline, erythromycin are some of the commonly known antibiotics. तो ये जो आप नाम पढ़े हैं that is streptomycin, tetracycline, erythromycin are all antibiotics which we use. So now talking about vaccine, that what is vaccine, क्या होता है वैक्सीन. तो आप देखिए कि वैक्सीन जो है वो एक्चुअली एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन है which provides immunity against a particular disease. So students, basically vaccine is a special kind of preparation or medicine which provides immunity or protection against a particular disease. Okay, I hope this is clear to you all. So now when a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. तो जब कोई भी माइक्रोब डिजीज़ लेके हमारी बॉडी में एंटर करता है तो जो हमारी बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं ताकि वो उस डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब से लड़ सके. चिल्ड्रन आर गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेज. और जो बच्चे होते हैं उन्हें काफ़ी वैक्सीन्स दी जाती हैं ताकि वो काफ़ी डिजीजेस से बच सके. नाउ द पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर यूजुअली आर वैक्सीन ओनली. और आपने देखा होगा जो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं वो भी वैक्सीन ही होती हैं. These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. और जो आज के टाइम पे वैक्सीन होती हैं वो लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करी जा रही हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेस. ओके, नाउ स्टूडेंट हियर अ टर्म कम, व्हाट इज वैक्सीनेशन. So vaccination is the process of giving a vaccine orally or by injection which provides protection against a particular disease. जो वैक्सीनेशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे आप बच्चे को वैक्सीन देते हैं चाहे ओरली या फिर इंजेक्शन के थ्रू ताकि वो उसकी बॉडी किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ से लड़ सके. एंड देयर आर सम डिजीजेस विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन and that are smallpox, polio, cholera, typhoid, hepatitis, tetanus, measles, rabies, tuberculosis, etc. etc. तो मैंने जो आपको अभी ये डिजीज़ेस के नाम बताए ये वो सारी डिजीज़ेस हैं जिनकी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं और ये इजीली क्योरेबल हैं. स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. So students, I hope this is clear to you all. Now let's just move to the next slide. It is talking about how microorganisms are useful to us and in increasing the soil fertility. ठीक है, मतलब soil fertility increase करने में microorganisms कितने useful हैं. So students, as I have taught you during the fungi microorganism that there are some microorganisms like blue green algae
they have the ability to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. मतलब जो आपके ये ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास ये टेंडेंसी होती है कि ये एटमॉस्फेयर से क्या कहते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करके दे कैन preserve it, and later on which would be helpful to enrich the soil and to increase its fertility, जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है और ऑटोमेटिकली जो भी प्लांट्स की ग्रोथ होगी इट वुड बी मोर बेनिफिशियल. These microbes are commonly called as biological nitrogen fixers. क्या बोलते हैं हम इनको? Biological nitrogen fixers. Okay, I hope this is clear to you. Now moving to the next slide is, students, I have explained you how microorganisms were helpful for us. मैंने आपसे ये पहले ही कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं. अब हमने पढ़ा था पहले कि वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल थे, अब हम पढ़ेंगे कि वो हमारे लिए कैसे हार्मफुल हैं. ओके, सो microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. जो microorganisms disease carry करते हैं उनको हम pathogens बोलते हैं, और ये diseases human beings में, plants में और animals में हो सकती हैं. Now examples of such diseases include cholera, common cold, chickenpox and tuberculosis. अब इन डिजीज़ के कुछ एग्जाम्पल हैं: कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स. अब कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो ये सारी डिजीज़ लेके आते हैं, जिसमें से हाउस फ्लाई इज़ वन सच एग्जाम्पल, और दूसरा आपका है मॉस्किटोज़, जिसमें से आपका जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है इट कॉजेज मलेरिया, एंड जो आपका एड्स मॉस्किटो है फीमेल इट कॉजेज डेंगू, एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड. सो हेयर द पिक्चर्स ऑफ फीमेल एनोफिलीज एंड फीमेल एडीज मॉस्किटोज आर बीन प्रेजेंटेड एंड हाउ दे react when they bite a body. Okay, I hope you can see the difference clearly, and it would be easily predictable that which mosquito is what. So students, now quickly moving ahead, we'll study about some common human diseases caused by microorganisms, and it has been divided into type of pathogen, their description, and the human diseases caused by pathogens of that type. So I have explained you earlier also that pathogens are the disease causing microorganisms, and the first type is bacteria, and the diseases caused by it is pneumonia, food poisoning, strep throat, tuberculosis, tetanus, infections, etc. etc. तो ये सारी डिजीज़ेस हमें किससे होती हैं? बैक्टीरिया से. अब हम वायरस से देखते हैं. कॉमन कोल्ड, फ्लू, जेनिटल हर्ब्स, कोल्ड स्टोर्स, मीजल्स, एड्स, जेनिटल वार्ड्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इन सब से हमें कौन सी डिजीज़ेस होती हैं? ये सारी डिजीज़ेस हमें वायरस से होती हैं. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट फंगाई, रिंगवॉर्म, एथलीट्स फूट, टीनिया, कैंडियासिस, हिस्टोपोलेमोसिस, ये सारी डिजीज़ेस हमें फंगाई की वजह से होती हैं. नाउ प्रोटोजोआ लीड्स टू मलेरिया, traveler's diarrhea, gardigiasis, trypanosomiasis, that is sleeping sickness, are diseases all caused by protozoa. Students, just remember one thing कि आप इनमें से 2 से 3 डिजीज़ेस के नाम याद कर लीजिएगा. इट वुड बी मोर देन इनफ. नो नीड टू लर्न ऑल दीज डिजीज़ेस. ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग? अब आपका नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज़ फूड पॉइजनिंग.
अब है क्या ये फूड पॉइजनिंग? सो द डिजीज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स like bacteria and fungi in the food, or due to the presence of toxic substances in food formed by the action of microorganisms is called food poisoning. मतलब वो बीमारी जो हमें तब होती है जब हमारे फूड में जो बैक्टीरिया और फंगाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका अमाउंट ज़्यादा हो जाए, या फिर जब हम वो फूड कंज्यूम करें तो उसकी वजह से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उस फूड में वो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ जब रिएक्ट कर जाते हैं तो उनको क्या कहा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग। आपने देखा होगा काफ़ी बार आपको बेचैनी होती है, यू डोंट फील कंफर्टेबल, आप सांस लेने में दिक्कत होती है, एट सम टाइम इट मे लीड टू डेथ ऑल्सो, फूड पॉइजनिंग, क्योंकि जो फूड आपके उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ रिएक्ट कर जाता है which causes a severe reaction type. Okay, and the major symptoms of food poisoning are vomiting, headache, pain in abdomen, fever, diarrhea. ठीक है, मतलब जब आपको फूड पॉइजनिंग होती है तो क्या होता है, आपको वॉमिटिंग होती है, हेडेक होता है, आपको पेन होता है एब्डोमेन में यानी पेट में आपके दर्द होता है, फीवर होता है, काफ़ी बार लूज मोशंस हो जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So students, always remember that food is a very precious material. It should not be allowed to get spoiled, become useless and cause food poisoning. मतलब food is very useful and it is very precious, so it should not be allowed to get spoiled or become useless, and which leads to food poisoning. I hope this is clear to you all. So let's just fight back, keep food safe from bacteria and always eat healthy food. Okay? So the part which we'll be studying now is the food preservation. अब हमें पता है कि जब हमारा खाना ख़राब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से तब हमें फूड पॉइजनिंग होती है. तो अब हम क्या करें ऐसा कि हमारा खाना प्रिजर्व्ड रहे. ठीक है, तो फूड इज स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. स्पॉइल्ड फूड हैज़ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट एंड कॉजेज फूड पॉइजनिंग. और जो खराब खाना होता है उसकी वजह से एक बैड स्मेल होती है, एक बैड टेस्ट होता है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फूड पॉइजनिंग. फूड कैन बी प्रिजर्व बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो खाना होता है उसको हम बचा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा. Food can be preserved by different methods and they are, the first one is the chemical method, जो कि कहता है कि food like pickles can be preserved by using chemicals like salts and edible oils. तो आपके जो ये वाले फूड आइटम्स हो गए लाइक पिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें कौन से केमिकल को यूज़ करके बचाई जा सकती हैं, लाइक सॉल्ट्स एंड ईडेबल ऑयल्स होते हैं, इनको यूज़ करके वी कैन प्रिजर्व देम. Jams and squashes can be preserved by using sodium benzoate, sodium metabisulfate. मतलब ये जो केमिकल्स हैं इनको आप यूज़ करके अपना जो फूड है यू कैन प्रिजर्व दैम. दीज केमिकल्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स. क्या कहते हैं इनको? प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट वन इज बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट. आपने देखा होगा जो किचन में सॉल्ट यूज़ होता है उसको यूज़ करके भी हम काफ़ी बार काफ़ी खाना बचा सकते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि मम्मियाँ अचार बनाती हैं तो उसमें दे पुट सॉल्ट ताकि उस पर फफूंदी ना लगे, वो ख़राब ना हो. तो उस तरीके से यू कैन यूज़ कॉमन सॉल्ट ऑल्सो. द नेक्स्ट वन इज़ बाय यूजिंग शुगर. आप शुगर यूज़ करके भी यू कैन प्रिजर्व द फूड. ओके, यू कैन प्रिजर्व द फूड बाय यूजिंग शुगर. तो जो आपके जैम्स होते हैं, जेलीज होते हैं, उन सब में शुगर यूज़ होता है. बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर. ठीक है, ऑयल और विनेगर यूज़ करके भी आप काफ़ी फूड आइटम्स बचा सकते हैं, जैसे कि पिकल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फिश हो गई, मीट हो गए. ऑल दीज आर प्रिजर्व्ड बाय oil and vinegar ताकि it prevents the growth of microbes on it.
एंड द नेक्स्ट वन इज़ बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा काफ़ी बार हम खाना गर्म करके और खाना ठंडा करके भी बचा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मिल्क इज़ बीन बॉइल्ड टू प्रिजर्व इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। आपने देखा होगा जो मिल्क होता है उसको हम गर्म करके स्पॉइल होने से बचा लेते हैं। और उसी तरीके से आपने देखा होगा जो काफ़ी सब्जियां बच जाती हैं घर में जैसे, और जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, या जो मम्मी आटा होता है, मिल्क होता है, ऐसी सारी चीज़ें हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो अगले दिन ख़राब ना हो एंड दे आर बीन प्रिजर्व एंड वी कैन ईट देम द नेक्स्ट डे। सो दे आर बीन प्रिजर्व बाय हीटिंग एंड कूलिंग। एंड द नेक्स्ट इज your the pasteurization. But before that student, let me tell you that there are several methods given in your book on page number 36 and 37. Please do read them and make notes from here also as well as from there also, and आप दोनों जगह रेफ़र करके नोट्स बनाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे और दे रखे हैं जो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एंड डू स्टडी, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ पैस्चराइजेशन। अब पैस्चराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड for 15 to 30 seconds and then suddenly chilling it to prevent the growth of microbes is called pasteurization। मतलब जब आप मिल्क को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हो, कितने मिनट, कितनी देर के लिए? 15 से 30 सेकंड के लिए, ताकि जो उसके अंदर बैक्टीरिया हैं वो सब मर जाएं, और उसके बाद यू क्विकली कूल इट, आप उसको जल्दी से फिर कूल भी कर देते हो एट लो टेम्परेचर ताकि उसमें और कोई बैक्टीरिया ना बन पाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पैस्चराइजेशन एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर। किसने डिस्कवर किया था इसको? लुइस पैस्चर। स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, एंड do study these preservation part properly and make notes of your chapter till here by today itself, so it should be a burden on you tomorrow. And the next part we'll be studying tomorrow, that is the nitrogen fixation, and we'll complete the chapter by tomorrow. Okay, because tomorrow I will be sending you your assignment and your question and answers, so be prepared with your notes, and I hope you don't be having any problem in this. And in case you have any problem, do ask me, and I'll be great to solve your problems. So students, thank you and have a nice day.